میرے پاکستانیوں، آج جو بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، میں سب سے پہلے پورے قوم کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ جو میں آپ سے کہوں گا اور یا ابھی تک میں اس ایشو کے اوپر بات کر رہا ہوں، اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، اور میرے آس پاس جو لوگ ہیں ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ابھی تک ہم کیا بھگت رہے ہیں۔ لیکن بحیثیت پاکستانی اور اپنے لوگوں کی نمائندہ کے یہ میرا فرض بنتا ہے، اور ان لوگوں کا میرے اوپر حق ہے، میری دھرتی کا، میرے ملک کا، میری مٹی کا میرے اوپر قرض ہے، اس لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں۔ اس لیے میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ پوری بات میری ضرور سنیے گا، کیونکہ آج میں اپنے ریاستی اداروں سے، سیکیورٹی فورسز کی اداروں سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، اور امپورٹڈ حکومت سے ہم نے سوال بھی بہت کیے اور اس ایشو کے اوپر بات بھی بہت ہوئی، لیکن آئین پاکستان جو ذمہ داری ہے میرے سیکیورٹی فورسز کی، میں ان سے اس ذمہ داری کے حوالے سے سوال کر رہا ہوں، اور اسی آئین پاکستان کے تحت کر رہا ہوں جو مجھے بھی اجازت دیتا ہے کہ میں ان سے سوال کروں۔ میرے پاکستانیوں، آپ کو علم ہوگا کہ میں نے آپ کو چند مہینے پہلے میں نے آپ کو آگاہ کیا تھا اور ریاست کو وارن کیا تھا، اور میں نے چند سوال پوچھے تھے۔ پہلا سوال میرا یہ تھا کہ ریجیم چینج آپریشن کے دوسرے مرحلے میں کیا امریکہ سے اس خطے کے جو بیلنس آف پاور ہے، یا امریکہ کو اڈے دینے ہیں، یا ایئر سپیس کا استعمال ہے، اس حوالے سے کوئی گفتگو ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ میرا پہلا یہ سوال تھا۔ نمبر 2، میرا سوال یہ تھا کہ افغانستان میں میرے پاکستان اور خصوصاً خیبر پختونخوا اور سابقہ فاٹا کے مستقبل کے حوالے سے آپ نے کوئی مذاکرات، کوئی کمٹمنٹس کیے ہیں کہ نہیں کیے؟ میرا تیسرا سوال تھا کہ سرحد پہ تو باڑ لگ چکی ہے، اور جب سرحد پہ باڑ لگ چکی ہے اور سرحد پہ تعینات کون ہوتا ہے اور کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ بارڈر سیکیورٹی فورسز، وہ کس کے انڈر آتے ہیں؟ کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ سرحد کے اوپر نقل و حرکت کے اوپر، نقل و عمل کے اوپر نظر رکھے؟ چوتھا سوال میرا تھا، اور میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، پھر میں آتا ہوں کہ اب کیا ہو رہا ہے، اور میں بڑے اہم سوال کروں گا اپنی قوم کی طرف سے، اپنے سیکیورٹی اداروں سے۔ چوتھا سوال میرا یہ تھا کہ کیا فاٹا مرجر کو واپس لینے کی اس کے اوپر بات ہوئی ہے، اور اگر بات نہیں ہوئی تو جتنے نکات پہ اس وقت گفتگو ہوئی ہے، کیا خیبر پختونخوا کے نمائندوں کو اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کو آپ نے اعتماد میں لیا ہے؟ پانچواں سوال میرا یہ تھا کہ نہ صرف 80,000 جو خاندان اس میں شہید ہوئے ہیں، اس میں 7,000 سیکیورٹی فورسز کے جوان بھی تھے، تو جو آپ افغانستان میں کرنا چاہتے ہیں، یا افغانستان میں جو اس وقت سلسلہ چل رہا ہے، اس کے نتائج ہم بھگتیں گے، تو کیا 80,000 خاندانوں کو جنہوں نے پاکستان کے امن کے لیے قربانی دی، ان خاندانوں کو آپ نے اعتماد میں لیا ہے؟ نمبر 6، کہ آپ کی ریجیم چینج آپریشن کے بعد امریکہ اور اس خطے میں طاقت کے توازن، اور پھر ہمارے خطے کو اور ہمارے لوگوں کو ایک نئی جنگ میں جو جا رہے ہیں، اور جو وہاں پہ گفتگو ہوئی ہے، یہ تمام نکات بھی امپورٹڈ حکومت سے میں نے سوال کیا کہ قوم کے سامنے رکھے۔ میرے پاکستانیوں، آپ کے سامنے ہیں کہ کوئی بھی چیز کا، کسی بھی سوال کا کسی نے جواب نہیں دیا، اور پھر وہی ہوا کہ ہمارے جو خدشات تھے وہ بدلے، آپ نے دیکھا کہ حقیقت میں بدلے، ہم نے ان علاقوں میں سرگرمیاں بھی دیکھی۔ پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی پختون قوم کا، اپنے لوگوں کا، کہ جو کڑے ہوئے، انہوں نے اس گیم کے خلاف، اور یہ جو ہمارے لوگوں کے خون کا سودا ہو رہا تھا، اس کے خلاف سوات، ملاکنڈ، دیر، خیبر ایجنسی، باجوڑ میں ہر جگہ پہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ 72 گھنٹے کا ٹائم ہمیں دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ واپس چلے جائیں گے۔ کچھ وقت کے لیے سرگرمیاں معطل ہوئی، پھر سے سرگرمیوں کا آغاز ہوا، اور میں نے کیا کیا کہ میں نے اپنے سیکیورٹی اداروں سے سوال پوچھا، اور اب تو میں نے کلم کلا ٹویٹر پہ DGI-SPR کو ٹیگ کر کے ان سے سوال سامنے رکھے۔ لیکن ہوتا کیا ہے میرے پاکستانیوں؟ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم پہلی دفعہ یہ سرگرمیاں شروع ہوئی، ہمارے سوالوں کے اوپر خاموشی اختیار کی گئی، ہم نے وہاں پہ سرگرمیاں دیکھی، ہمارے لوگوں میں خوف کی فضا آئی، تو ہم کھڑے ہو گئے، ہمارے لوگوں نے ساتھ دیا، اور یہاں پہ
जिनका काम था हमें सिक्योरिटी देना, जिनका काम था हमारे अमन को यकीनी बनाना, उनकी तरफ से एक बयान आता है, टीवी चैनल जो उनको चलाते हैं, क्या बयान आता है कि नहीं ऐसी प्रोपेगेंडा हो रहा है सोशल मीडिया पे, वहां पे हालात बिल्कुल ठीक है। मैं आज आपसे सवाल करता हूं, उस वक्त मैंने सवाल नहीं किया क्योंकि एक तरफ आप टीवी पे बयान चला रहे थे, दूसरी तरफ हमें कह रहे थे कि 72 घंटे का इंतजार करें, इनको हम वापस भेज रहे हैं। और फिर हमने देखा कि दिल की साहत तक वो वापस चले गए। लेकिन फिर जब से एक्टिविटी शुरू हो गई, हमने सवाल किया, लेकिन अगर हालात ठीक थे तो हमारा डीएसपी, उसको गोली कैसे लगी थी? पूरे स्वात के लोगों को पता है कि गोली कैसे लगी थी। फिर दूसरा सवाल यह है कि आपका मेजर और कैप्टन भी तो उनकी हिरासत में था, उनकी वीडियो भी मंजर आम पे आई थी, तो क्या ये मजाक था? क्या ये प्रोपेगेंडा था? वहां पे जो लोगों को तावान के फोन आते हैं, जो कॉल्स आते हैं, क्या ये मजाक था? आपने किस तरह कह दिया कि ये तो प्रोपेगेंडा हो रहा है? कोई प्रोपेगेंडा नहीं हो रहा। और इसके साथ साथ मैं ये भी सवाल करूं, और मैं आपको कुल के बात कर दूं आज, कि अगर गद्दारी के फतवे लगाते हैं, कोई गद्दारी के फतवे लगाते हैं, वो भी सुन लीजिए कि 7000 सिक्योरिटी फोर्स के जवान जो शहीद हुए हैं वो भी मेरे अपने हैं, मेरे मुल्क के अमन की खातिर वो शहीद हुए हैं। लेकिन 80,000 जो आपके पाकिस्तानियों ने कुर्बानी दी है, वो भी हम लोगों ने दी है। हमने भी इस पाकिस्तान के अमन की खातिर अपने घरों की कुर्बानी दी है, अपने अपनों की कुर्बानी दी है। हमें कोई गद्दारी के सर्टिफिकेट ना दे, ना हमारे हुब्बुल वतनी के ऊपर सवाल करे, हमारे अमन का हमें जवाब दे। सिक्योरिटी जिनकी जिम्मेदारी है वो हमें जवाब दे। सड़क पे बाढ़ लगा था, उसके बावजूद लोग कैसे आते हैं, हमें इस बात का जवाब दे। मुल्क मेरा है, लोग मेरे मरेंगे, दहशतगर्दी का शिकार मैं होऊंगा। मैंने तरक्की दी है, खुशहाली दी है, अमन दिया अपने लोगों को। हमने वहां पे अपने हाथों से अपना स्वात और अपना मलाकन बनाया है। हमने खैबर पख्तूनख्वा में अरसे बाद अमन देखा है, हमने अपने हाथों से बनाए। हम वो तबाह होने नहीं दे सकते। हमारी नजरों के सामने चीजें हो रही है, हमें कहा जा रहा है कि नहीं हालात ठीक है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लोगों से पूछो ना, तो सड़क पे बाढ़ लगा है, उसके बावजूद ही कैसे हो रहा है? अफगानिस्तान में नुमाइंदा में मेरे लोग, सुबह चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है, उनकी बजाय अफगानिस्तान में जाके कौन हमारे मुस्तकबिल के फैसले कर रहा है? किस तरह रिजीम चेंज के बाद हमारे खून का फिर से सौदा होने जा रहे हैं? ये ना करे, इसका जवाब दे कौम को। और मैं यहां पे 2-3 सवाल करता हूं, अपने पाकिस्तानी कौम से भी अपील करता हूं, और इसके साथ मैं मीडिया से अपील करता हूं। मेरे मीडिया के दोस्तों, मैं लोकल सहाफियों को तो दाद देता हूं कि वो हमारे साथ खड़े रहे इस इशू के ऊपर, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, याद रखिएगा, खबर सिर्फ ये नहीं होती कि बम धमाका हुआ और 50 मरे और उसके ऊपर आपको टीआरपी मिल जाए। खबर सिर्फ ये काम नहीं होता कि इतने लोगों को अगवा किया गया, इतना भत्ता मांगा गया। हमने पहले से इस इशू के ऊपर बात कर रहे हैं। हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि हमारे मुस्तकबिल के सौदे हो रहे हैं, हमारे बच्चों को और हमारे मुस्तकबिल को और हमारे अमन को एक दफा फिर जंग में धकेला जा रहा है। लेकिन आप सब खामोश है। आप भी हमारे मुजरिम है, पाकिस्तान का मीडिया भी हमारा मुजरिम है। इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, ये कड़े नहीं हुए, इन्होंने सवाल नहीं पूछा। और मैं बाकी पाकिस्तान से कहता हूं, मैं अपने सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और इस्लामाबाद के लोगों से कहता हूं कि अगर आग लगेगी स्वात में, दिर में, बाजौर में, वजीरिस्तान में, इसकी तपिश आप भी महसूस करोगे। ये जिस तरह आगाज हुआ था, जब पहला ऑपरेशन किया गया था 2004 में वजीरिस्तान में, सिलसिला वजीरिस्तान में नहीं रुका था, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, पूरे फाटा में, और फिर इस्लामाबाद में भी धमाके हुए, लाहौर में वाघा बॉर्डर पे भी धमाका हुआ, कराची में धमाके हुए, क्वेटा में धमाके हुए। पूरे पाकिस्तान से हमारे अपनों के जनाजे उठे। खुदा के लिए इस आग को रोके, खुदा के लिए लोगों के मुस्तकबिल के फैसले करते वक्त उनको इत्मीनान में ले, लोगों की जिंदगियों से मत के ले। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत जो भी ये पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं, उनको मैं बताता चलूं, और इतनी भी बेशर्म है यार ये इम्पोर्टेड हुकूमत कि रिजीम चेंज के बाद आपसे हम बार बार सवाल कर रहे, एक लफ्ज तक नहीं बोला। क्या हमारे खून की इतनी अहमियत नहीं है? क्या आपके खून का रंग लाल है और हमारे लोगों के खून की कोई हैसियत ही नहीं है? हमारे बच्चों की कोई हैसियत नहीं है? हमारे अमन का आपकी नजरों में उसकी कोई हैसियत ही नहीं है? मेरे पाकिस्तानियों, आज मैंने आपके सामने चीजें रखी, हमें बताया जाए कि हमारे खित्ते में कौन सा नई गेम खेली जा रही है। नंबर 1। नंबर 2, सरहद किसकी जिम्मेदारी है सिक्योरिटी देने की? बाढ़ लगाने के बाद वहां पे लोगों की नकलो हरकत कैसे हो रही है? हमारे इलाकों में जब ये सरगर्मियां हो रही है, हम सवाल उठा रहे हैं, तो हमें टीवी पे आके एक बयान दिला के ये क्यों कहा जा रहा है कि प्रोपेगेंडा हो रहा है?
और अगर प्रोपेगेंडा था तो हमारे सिक्योरिटी फोर्स के मेजर और कैप्टन को भी तो उन्होंने उसकी वीडियो रिलीज कर दी थी। फिर उसके बाद मेरा एक और सवाल है कि अफगानिस्तान में जो कमिटमेंट्स हो रही है, मुस्तकबिल मेरा, घर मेरा, जिंदगी मेरी, आग मेरे घर में लगेगी, लेकिन वो उसके ऊपर हमें पता ही नहीं है। फिर पांचवी चीज कि इस खित्ते में मफादात, कौन से मफादात की तकमील के लिए तमाम चीजें हो रही है, खुदा के लिए इसको सीरियस ले। और आखिर में मैं एक दफा फिर कह दूं अपनी कौम से, अब मैं पूरे पाकिस्तानी कौम से कहता हूं, खुदा के लिए उठे, बात करे यार, बात करे। आज भी हमारे उन इलाकों में लोगों को फोन भी आ रहे हैं, कुछ अगवा भी हो गए, एक दमाग का भी हो गया, हमारे अपने शहीद हो गए। ये आग रुकने वाली नहीं है। मैं पागलों की तरह रोजाना इसके ऊपर बात कर रहा हूं, आपको वार्न भी कर रहा हूं, अवेयर भी कर रहा हूं, इसके ऊपर कुछ करे। और अगर नहीं किया जा रहा, मैं अपनी कौम से कहता हूं, मेरे पाकिस्तानियों और खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों, जब ये नहीं सुन रहे, जब कोई आपकी आवाज को इग्नोर कर रहा है, जब आपके सवालात को इग्नोर किया जा रहा है, आपने खुद अपने अमन के लिए खड़े होना है, जिस तरह आप 1 महीना पहले खड़े हो गए थे। उठे, खड़े हो जाए, सवाल पूछे, और सवाल पूछेंगे, जवाब लेंगे, सड़कों पे निकलेंगे। हम यहां पे आएंगे, इस्लामाबाद का रुख पूरा खैबर पख्तूनख्वा, चाहे जिस पॉलिटिकल पार्टी से आपका ताल्लुक हो, सियासत छोड़ दो, सियासत को भूल जाओ, अपने लोगों की बात करो, अपनी अमन की बात करो, अपनी तरक्की और खुशहाली की बात करो। और एक चीज मुझे फिर से मैं कह दूं कि जब मैंने पहली दफा इस इशू को उठाया था तो यह कहा गया कि ये तो बहुत बड़े जो रीजन के अंदर और बड़े पावर गेम होता है, इसमें बात कर रहा है, इसको ये इख्तियार किसने दिया है। फिर हमें यह भी पता होता है कि सवाल हम एक से करते हैं, दूसरे के हुलिये में हमें धमकियां मिल जाती है, दूसरे के हुलिये में बंदा हमारे सामने आ जाता है। हमने अपने घर को गिरते देखा था, मेरी वालदा को सर पे गोली लगी थी, मेरे भाई को गोलियां लगी थी, इस मुल्क के अमन की खातिर। और हमने कमिटमेंट की थी कि हम किसी के घर को उजड़ने नहीं देंगे, हम वो कमिटमेंट पूरी करेंगे, हम खड़े रहेंगे अपने लोगों के साथ, हम अपने लोगों के अमन पे कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और मैं आखिर में एक और चीज बताऊं, हमारी ना इधर लड़ाई है न उधर लड़ाई है, हमारी लड़ाई एक चीज से है, बदअमनी ना हो, खुशहाली, तरक्की और अमन का सफर न रोके। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।